گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے الیکشن مہم کا وقت ختم، ووٹنگ کے لیے دنگل کل سجے گا۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، تحریک انصاف سمیت متعدد سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں۔ انتخابات گلگت بلتستان اسمبلی کی 33 نشستوں میں سے 24 نشستوں پر ہوں گے۔ 6 نشستیں خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹ کے لیے مختص۔ خطے کے 10 اضلاع کے 24 نشستوں کے لیے 1368 پولنگ اسٹیشن قائم۔ انتخابات میں 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دا ټولو کمانډرانو سره دغه سا کې لا 70 افغانان به شي، څومره افغان کمانډران دي کوم خاطر مالا شي دي دغه کړي وو مختبل مختوار چې کړي وو د راکټ ول دا ایغول د راکټ ول چې کړي وو افغانستان کې دي کې ټول کوته خا په روټ شي دي دي کې چې دا کومه هیڅ څه کړي وو دي کې دا کوم امیر شو۔ تمام خارجی کمانڈرز کے ساتھ افغانستان سے تربیت یافتہ 60 سے 70 افغانی ہیں۔ خواجی نیٹ ورک شادی خیل بیس پر حملے اور کوٹہ خواہ روڈ پر دھماکے میں بھی ملوث تھا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خواجی عمر دین اور جذبہ کے ہوشربا انکشافات، کہا کہ اس نے 2025 میں والد سے لڑائی کے بعد کلعدم ٹی ٹی بی میں شمولیت اختیار کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال بدستور کشیدہ۔ امریکہ کا ایران میں گورگ اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات پر حملہ۔ امریکی فوج نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ جوابی کارروائی میں پاسداران انقلاب کا کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کے میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی طیاروں نے مبینہ طور پر داغے گئے ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی۔ ہمسائے ممالک میں داغے گئے 6 ایرانی میزائل روک لیے۔ 7واں میزائل اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ امریکی کارروائیاں جاری نہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ ایران کو ڈیل کرنا پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ ایران نے اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ طاقتور اور غیور ہے۔ امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ میں ڈیموکریٹ ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی تصویراتی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے خبردار کر دیا، کہا ایران کی طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور تصویراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ سفارتی خوش فہمیوں کی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ اسرائیل نے امریکی حکام کی جاسوسی بڑھا دی۔ نگرانی کا مقصد مشرقی وسطی تنازع پر ٹرمپ انتظامیہ کی خفیہ گفتگو سننا اور امریکی فیصلہ سازی کی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی جب بھی اسرائیل جاتے ہیں تو معمول سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فوجی گاڑی پر حملہ، لبنانی فوج کے افسر سمیت متعدد اہلکار شہید ہو گئے۔ صدر جوزف آن لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے بچائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا کہ امریکہ کے ساتھ لبنان کارڈ استعمال کرنا ہوتا تو معاہدہ کافی پہلے ہو چکا تھا۔ ایران اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا خراج تحسین واضح کیا، نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے کبھی ایران سے۔
पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान का बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर कोलोकोल्टेस्टिव की मुलाकात में अहम मुआहदों पर भी दस्तखत कर दिए गए। मोहसिन नकवी की ताजिक वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीमज़ादा से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के कैंपों से मुतालिक बातचीत हुई। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों बहनों, मैं आपको मालिकाना हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। दरिया के किनारे से लेके पहाड़ का चोटी तक आपको ज़मीन का मालिक बनाना चाह रहा हूँ। आज से नहीं, जब से मैं सियासत में आया हूँ, ख़ास तौर पे जब से मैं गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहा हूँ, तो यही हमारा मशहूर रहा है। दरियाओं के किनारों से लेकर पहाड़ों की चोटी तक गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी पैगाम का, हमारा आज़म है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनकी ज़मीन का हकीकी मालिक बनाया जाए और उनके हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाए। 7 जून को घरों से निकलें, अपने हक़ मिल्कियत, अपने मुस्तक़बिल और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तीर के निशान पर मोहर लगाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की आवाजें आ रही हैं। लाहौर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि अवाम नून लीग को हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाड़ कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सफर है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की महकमा दाखिला ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीमें फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के मक़बूल शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर ना कभी भारत का नाम निहाद अटूट अंग था, ना है और ना कभी होगा। गुल कैसर सरवानी का सलामती काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर जनरल असेंबली मुबाहिसे में भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर जवाब, कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने के बजाय हक़ाइक़ का बग़ौर मुताला करे। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। बजट तो पाकिस्तान में रोज़ाना आता है और हर जुमे को एक बजट का ऐलान करते हैं हमारे जो वज़ारत पेट्रोलियम वाले हैं या हुकूमत की तरफ से, और पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। छोटे छोटे काम करने वालों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ये पेट्रोल की कीमत को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन हालात में भी इन्होंने लेवी लगा कर रखी हुई है। बजट तो पाकिस्तान में रोजाना आता है। हर जुम्मे को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत ने लेवी खत्म ना की तो हड़ताल की कॉल देंगे। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के जुमरे में नहीं आता। लेवी की मद में आवाम से 8,066 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। हुकूमत के नए माली साल के बजट में टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो। ज़राए के मुताबिक बजट तजवीज़ में कारोबारी सरगर्मियों और दरामदी शोबे के लिए मुतादिद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। आइंदा बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। दरामदी मेकअप मसवाद पर ड्यूटी कम करके 4% करने पर गौर।
ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक्स की दरामदी मशीनरी पर टैक्स की मुतवक्के है। जीबी इलेक्शन में मसरूफ लीडरशिप वापस आकर बजट पर मुशावरत करेगी। हम कोशिश करेंगे कि बजट में तजावीज़ दें। तवक्को करते हैं कि जंगी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत गरीब अवाम का ख्याल रखेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जहलू में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि इस वक्त मुल्क में बजट की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप कोशिश कर रही है कि मुल्क के हालात बेहतर हों। IT बरामद कुंदगान के लिए नई सहूलियात, डिजिटल मईशत और बरामदात के फरोग में अहम पेशरफ्त। रवां माली साल के पहले 10 माह में पाकिस्तान फ्री लॉन्सर्स की बरामदी आमदन 95 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची समेत सिंध में भी सूरज आग बरसाने लगा। कई शहरों में पारा 45 डिग्री क्रॉस कर गया। बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार, शिद्दत में मजीद इजाफे का अलर्ट जारी। माहिर मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मौसम अबरालूद, जबकि चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बरतानी नौजवानों को कॉकरोच कहने वाली भारतीय चीफ जस्टिस सूर्या कांत को बरतानिया में हजीमत का सामना। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान भारतीय चीफ जस्टिस को शुरुका ने आड़े हाथों ले लिया। तकरीब बदनज़मी का शिकार। भारतीय फौज का ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतजर। ऑपरेशन के दौरान हजारों निहत्ते मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज के सफाकी का निशाना बने। गोल्डन टेम्पल पर हमला आलमी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी था। जमहूरियत के दावेदार भारत ने अक़लियतों को खौफ के साए में धकेला।